ओके साहब, समहाउ कल का लेक्चर हम लोगों का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट तो किया था बट नहीं हो पाया था। मैं आज फिर से कर रहा हूँ, एस इट इज रिकॉर्डेड। तो रेड, सपोज रेड वाला इज फ्रंट साइड ऑफ योर आई, एंड जो भी ब्लू लाइन अभी किस पे, स्प्रिंग पे है, सपोज दिस इज बैक साइड। तो कहने का मतलब ये ऐसा है ना, स्प्रिंग ऐसे ऐसे ग्रेजुअल स्केलिंग है, like 1 2 3 in terms of mass, that is in terms of mass. तो 1 2 3 4 5 6, this is a scale of mass, increasing order of mass 1 2 3 4 5 6। तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अगर मैं रखता हूं तो पता चला कि एक लाइन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, all elements which are coming on same gradual marking, they are having similar physical properties। समझ में आ रहा है? सपोज दिस इज वन हाइड्रोजन, सपोज दिस इज वन, सपोज दिस इज टू, थ्री, ठीक है ना। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है बट ग्रेजुअल मार्किंग ऐसा है कि दे आर कमिंग जस्ट बिलो टू ईच अदर, जस्ट बिलो टू ईच अदर। स्प्रिंग, स्प्रिंग को लेकर के विजुलाइज करो। स्प्रिंग तुम्हारे फ्रंट साइड भी है, बैक साइड है, तो लेफ्ट साइड रप एंड, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड। तो स्टार्ट विथ वन, स्लाइटली हेलिक्स इंक्रीज कर रहा है, टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, लाइक दिस वन। तो ऑल फ्रंट साइड लाइंस एलिमेंट्स आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनके कहने का मतलब ये था। स्टेटमेंट इसका लिखना है क्या प्लीज? स्टेटमेंट Yes, इसका sir. लिखना है क्या? यस Yes. प्लीज राइट। लिखो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, elements are arranged in increasing order of, are arranged in increasing order of their atomic mass, Can you increasing repeat, order sir? of their atomic mass in in helical, in helical shape like a spring, in helical, Can you in repeat, sir? helical shape like a spring. Repeat. The elements are arranged in increasing order of their atomic mass, atomic mass in helical shape like a spring. Okay, next point लिखा, लिखो all elements, all elements, all elements which are, all elements which are, all elements which are, all elements which are coming, which are coming on same line, which are coming on same line of spring, same line of spring, same line of spring, are having similar physical and chemical properties. Are having similar physical and chemical properties. Okay, Sir, ड्रॉबैक्स लिखो। यस, कोई पूछना चाह रहा है? sir, will you please repeat? बोलो, थोड़ा सा आवाज तुम्हारा कम आ रहा है। Sir, will you please repeat this previous point?
टेल मी और टेक्स्ट मी प्लीज। चैट से बोलो क्योंकि आवाज कम आ रही है। ओके, नाउ ड्रॉबैक लिखो, ड्रॉबैक। लिखो all elements lying all elements lying on same line, lying on same line। पहले ये वाला पॉइंट लिख लो निदिता। all elements lying on same line are not having similar physical and chemical properties। उसके बाद लिखो elements after atomic number 20 elements Sir, after please repeat again. हाँ, elements after atomic number 20, elements atomic number after 20 are having different atomic number after 20 are having different physical and chemical properties। Different physical and chemical properties, those they are lying on same line, though they are lying on same line। आर्या पॉइंट ले, ड्यू टू नेटवर्क हम लोग बाहर हो गए थे। तो एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 are not having similar physical and chemical properties, though they are lying on same line, though they are lying on same line, though they are lying on same line। Ronit, is there any problem? No, sir. नहीं है, वेरी गुड। और वैसे भी हम लोग इस टॉपिक को बिंदास होकर के पढ़ें क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ। Yes, दर्शन is saying कि वन, रेवा बोलो, तुमने भी हाथ उठाया है, चैट पे लिख करके भेजा है। Sorry, sir, by mistake. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। Sir, order of elements in modern periodic table is according to atomic mass number, according to atomic number, and others periodic table have arranged according to their mass. So how come to the order of these elements says constant, like hydrogen, lithium, बेरिलियम? क्या हो रहा है अभी तुम देखोगे, अप टू एटॉमिक नंबर 10, अप टू एटॉमिक नंबर 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहा है, जस्ट डबल टाइप के हैं। उसके बाद सभी का एलिमेंट में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स चेंज डिफर करते जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बियॉन्ड द टॉपिक इन्होंने पूछ लिया, बियॉन्ड द टॉपिक नहीं पूछा है, सही है। उन्होंने क्या पूछा है दर्शन ने कि ईच एंड एवरी पीरियोडिक टेबल टिल नाउ they are arranged in increasing order of their atomic mass, but periodic table modern is in atomic number। तो फिर भी वो कैसे पीरियड्स में आते रहे या सेम कैसे डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू के साथ,
और उसी ग्रुप में आते रहे, ठीक है ना। तो भाई क्या हो रहा है, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास। ये इक्वली इक्वली होते जा रहे थे, इसलिए अप टू एटॉमिक नंबर 20 नॉर्मली सारे मास के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज फॉलो करते जा रहे थे, क्योंकि 20 के बाद देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा, इसलिए सब डिफर करना स्टार्ट कर जाते थे। ओके, इसको हम लोग फिर से देखेंगे। और बोलो, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो सर और बोल, हाँ बोलो। करो ना प्लीज। यस, सर वो फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो ना प्लीज। फोर्थ पॉइंट क्या था? फर्स्ट एक्चुअली मैं भी क्या है डायरेक्टली डिक्टेट कराता रहता हूँ। भाई फोर्थ पॉइंट बोलो सभी लोग इनको। सर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ ड्रॉबैक का ड्रॉबैक का नो इट्स ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कमिंग उसके हाँ, बाद ऑल एलिमेंट्स आर व्हिच आर कमिंग ऑन सेम लाइन of spring are are having similar physical and chemical chemical properties. Yes, all elements which are coming on same line of the spring are are having having similar physical and chemical chemical properties. properties. Okay, Right. थैंक यू सो मच अभी। हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली तुम लोग मुझे देखोगे अभी, नॉर्मली तुमने देखा होगा जितने भी टीचर्स हैं इन फ्यूचर भी दूसरी दूसरी कोचिंग में हमेशा नोटबुक लेकर के आते हैं और फिर पढ़ाते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं, तुम देखना, मैं n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं वहीं पर बनाता हूँ। मुझे आईआईटी के जितने भी 30-40 इयर्स के प्रॉब्लम्स है वो मुझे नॉर्मली, मुझे उसका थीम पता है, तो मैं उसी टाइम का प्रॉब्लम्स बना बना करके इमीडिएटली तुम्हारे सामने फ्रेम करता हूँ। तो ऐसा है, ऐसा नहीं कि कुछ नोटबुक लेकर के करा रहे हैं, ऐसा करके कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे नॉर्मली कौन सा पॉइंट कहाँ पे है कौन सा नहीं है कुछ भी पता नहीं रहता था। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज मेंडेलेव। ये ऑलरेडी तुम लोगों ने खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये भी हमारे कोर्स में अब नहीं है, इट वाज इन 10th क्लास, नो प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अगेन इनका भी थ्योरी कैसा था, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, स्लाइटली दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप। फिर मेरे पास 1 रोमन वर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बोलो ऐसे ऐसे कितने कॉलम बनाए उन्होंने? 4, 5, 6, 7, चैट पे बोल सकते हैं सभी लोग कितने बनाया उसने ऐसे ऐसे। 10th क्लास 8, वेरी गुड। तो 8 उन्होंने बनाया। ओके, एंड फिर हॉरिजॉन्टल उन्होंने ऐसा रोज लेना स्टार्ट किए। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज, बोलो किसी को आइडिया? तो इट वाज 7. 7, इट वाज 7, 7 ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। किसी को प्रॉब्लम No. नहीं है? तो ऐसा है। इसमें इन्होंने फिर से इसको डिवाइड किया किसमें, इन टर्म्स ऑफ ए बी के टर्म्स में। यहीं पर ये ऊपर है ए बी।
मतलब each column is subdivided into A, B, A, B. This is A, B, A, B, A, B ऐसा. ओके 8 वाला ए बी में डिवाइडेड नहीं था. तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मोस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग पीरियोडिक टेबल है हाइड्रोजन lithium then after sodium potassium rubidium like this one. ठीक है ना. तो मैं सभी को नहीं लिख रहा हूं. यहां पर उसने क्या किया ऊपर साइड में के को रखा और नीचे साइड में बी वाले में कॉपर को रखा एजी को रखा ऐसा. ठीक है ना. ऐसे ही सभी एलिमेंट्स में सेम केस विथ लिथियम के बाद लेफ्ट कॉर्नर बेरिलियम ओके देन आफ्टर मैग्नीशियम देन आफ्टर कैल्शियम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इज राइट साइड Zn. तो ए बी उन्होंने ऐसा रखना स्टार्ट किया. तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन Carbon, हाँ देन आफ्टर नाइट्रोजन hydrogen, ऑक्सीजन oxygen, फ्लोरीन. fluorine. ठीक. अब देखो यहां पर उन्होंने एटॉमिक मास भी करेक्ट करके दिया बोरॉन का. अच्छा फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग मैं तुम्हें और भी इसमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है क्या है that is written with respect to oxide and hydride. ये कैसा लिखा उन्होंने ऑक्साइड एंड हाइड्राइड के रेस्पेक्ट में. विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ही कैटेगराइज ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है ना. क्या बोला उन्होंने R2O एंड RH. फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे दिस इज RORH. तो ही राइट द एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू थोड़ा सा एक और भी लिख लिया जाए. कार्बन के बाद सिलिकॉन एंड सिलिकॉन के बाद उन्होंने स्पेस खाली रखा हुआ था. सिलिकॉन के बाद स्पेस खाली रखा हुआ था. एल्यूमिनियम के बाद का स्पेस उन्होंने खाली रखा हुआ था जिसका एलिमेंट उन्होंने पहले से ही डिस्क्राइब करके रख दिया. इज कॉल्ड एज इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन. Sir, Eka boron was also there. हाँ देखते हैं. कई एलिमेंट्स थे ऐसा नहीं था एक थे. 3 थे. सी नाउ द नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ. स्पेस कम है तो ऑल एलिमेंट्स that is R2O. तो he picked up hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen are highly reactive. That's why it will form. अभी एक वर्ड तुम्हारे पता नहीं 10th क्लास में था या नहीं था. That is called as equivalent weight. Okay. 10th में था क्या equivalent weight word? No. Was it in No, 11th sir. 10th class or not? No. No, no. ठीक है. तो मैं बताता हूं कि how he arranged all elements with respect to oxygen. Okay. मैं बताता हूं. इक्विवेलेंट वेट ऑब्वियसली है थोड़ा सा 11th क्लास में तुम्हें मिलेगा बट बहुत बाद में मिलेगा. ठीक है ना. तो इक्विवेलेंट वेट व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट. अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लूं
1 ग्राम हाइड्रोजन एंड सपोज कोई भी एलिमेंट है, उसको 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ बर्न किया या कंप्लीटली रिएक्शन किया, तो हाइड्रोजन जब 1 ग्राम खत्म हो जाएगा ना, हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम खत्म हो गया तो एलिमेंट, सपोज सोडियम ले ले, सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा, जैसे ही 1 ग्राम हाइड्रोजन खत्म होता है, तुम देखो सोडियम कितना खत्म हो गया है, इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। सिमिलरली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेके, तो ये जो वर्ड अभी मैं बोल रहा हूं, हो सकता है समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन उसने सारे एलिमेंट से रिएक्शन करा करके, यानी बर्न करा करके देखा, उसके बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में उसने रखना स्टार्ट किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ओके, किस पैटर्न में रिएक्शन कर रहे हैं, कितना मास खत्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने अरेंज करना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है ना? he burn all the elements with oxygen and start arranging in increasing order of their atomic mass. ठीक, and that 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जितना सोडियम खत्म होगा इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा, मैं डिटेल्ड में कराऊंगा, कम से कम नहीं तो इक्विवेलेंट वेट पर इट विल टेक नियर अबाउट 2 आवर्स। ठीक है ना? जब डिटेल में मैं करूंगा तो एक छोटा सा वर्ड विल टेक 2 आवर्स। इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए जैसा मुझे 10th में इंफॉर्मेशन है उसी पे रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तू लेता तो क्या होता, ऐसा आता Al2O3 टाइप का। ठीक है ना? तो अब इसके बारे में क्या रहा, बहुत मैं बोल दूं ब्रिलियंटली he already discussed the element which was not discovered, and that particular moment of time 63 elements were discovered and they were arranged in increasing order of their atomic mass with respect to oxygen or hydrogen. Okay, now what is the achievement, you can say, so many elements which were not discovered, but he already predicted that this will be the property when these elements will be discovered, and its name was already defined, called as Ika. Ika is संस्कृत वर्ड जिसका मतलब नाम होता था वन, One. यानी वन उसके बिलो। वन उसके बिलो। ओके, तो ऐसे ही मेरे पास यहां पर आता था गैलियम। ठीक है ना? तो इनका प्रॉपर्टी पहले से ही डिस्कवर्ड उसने करके बता दिया था, व्हेनेवर दे विल डिस्कवर दे विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन, गैलियम इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन। ठीक है ना? And sir, germanium. हाँ बोलो। एका जर्मेनियम ही है ना? हाँ हाँ है ना बिल्कुल है, एल्यूमिनियम के नीचे वही आएगा ना। हाँ, यस। स्कैंडियम भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक दो का लेकर के बोल रहा हूँ, और मेरे साथ फिर इसमें प्रॉब्लम भी आने स्टार्ट हो गए, और वो प्रॉब्लम्स क्या आने स्टार्ट हो गए मेरे पास, बोलो इस वाले के लिए व्हाट वाज द प्रॉब्लम, यानी यू कैन से व्हाट वाज द ड्रॉबैक बेसिकली। कोई बोलेगा?
सर आइसोटोप्स। हाँ चलो अच्छा, इसमें Elements मेरे with पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन is having similar properties, hydrogen is having similar properties like फर्स्ट वाला ग्रुप और जो इधर का 7th ग्रुप वाला है, इसके भी प्रॉपर्टी। ओके, और उन्होंने 8th ग्रुप में क्या रखना स्टार्ट कर दिया था, ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट उन्होंने रखे थे, लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, ऐसे ही मेरे पास है Ru, ड्यूटेरियम, रोडियम एंड पैलेडियम। तो in last group there was 3 elements. Now come to the drawback. मैं बताता हूं 1 by 1, मैं सब लिखवा दूंगा, कोई कुछ नोट मत करो, अभी सिर्फ देखो। फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, फिर मैं डिस्कस करता हूं, फिर देन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ओके, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद अगेन देयर वर सो मेनी एलिमेंट्स, they were having higher atomic mass but they were placed before. For example, if you are taking cobalt, if you are taking nickel, okay, nickel ka mass is 58.71, cobalt is having atomic mass of 58.91। ऐसा कोई जरूरी नहीं था। टेल्यूरियम एंड आयोडीन ऐसा करके था, आयोडीन का एटॉमिक मास मस्ट बी हायर, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन मस्ट बी हायर, बट उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। आयोडीन का मास वाज, या इज बोल दूं 126.9 and this one is 127.6. Yes, increase in atomic mass was not uniform. Very good, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सब लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेन ड्रॉबैक क्या रहा, पूरा पीरियोडिक टेबल विल डिस्टर्ब इफ यू आर टेकिंग आइसोटोप, ठीक। Suppose you are having isotope nitrogen 7, nitrogen 14, nitrogen 7, nitrogen 15. Suppose you are having carbon 6, 12 and carbon 14. अब तू 14 को जैसे ही लिखेगा ना, पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब। Suppose you are having hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3. This is called as hydrogen, this is called as deuterium. This is called as deuterium. And उसके बाजू वाला is tritium. तो इन सब में प्रॉब्लम आ रहा है, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। देखो पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब। ओके, तो मेन ड्रॉबैक मेरे पास यही था, जिसकी वजह से पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने बोला एलिमेंट्स विच आर हैविंग सिमिलर, दोज हु आर लाइंग इन द सेम लाइन आर हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो कहीं कहीं पे हमारा वो भी डिस्टर्ब करने लग गया था, ठीक है ना, कहीं कहीं पे हम लोग को वो भी डिस्टर्ब करने लग गया। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग आते हैं फर्स्ट टाइम इन्होंने डिफाइन किया ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप इज वर्टिकल कॉलम and period is horizontal row. Vertical columns are 8. बाद में when मॉडर्न या बोल लूं मेंडली पीरियोडिक टेबल आया, मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल आया, उसमें उन्होंने जीरो ग्रुप लेकर के दिया। जीरो ग्रुप में क्या किया उन्होंने, जीरो ग्रुप में उन्होंने क्या किया, जीरो ग्रुप में उन्होंने हीलियम, नियॉन, आर्गॉन ऐसा करके रखा, किसको, इनर्ट गैसेस के लिए। ओके यस। तो कुल मिलाकर के हम लोग आते हैं, बोलो इस पर पॉइंट्स लिखने हैं क्या प्लीज। Yes. लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 हम लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं हाँ? लिखो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, elements are arranged in increasing order of their atomic mass, are arranged in increasing order of their atomic mass. Are arranged in increasing order of their atomic mass. Next point लिखो, vertical columns are called as group or groups, which are further subdivided into A and B, which are further subdivided into capital A and capital B, and horizontal rows are called as periods, horizontal rows are called as periods. Next point, लिखो in group 8 in group 8 in group 8 in group 8 three elements are placed three elements are placed next लिखो elements which are in same group elements which are in same group Sir, can you repeat the third point? in group 8 group of three elements are placed. Thank you, sir. ठीक है, Yes, लास्ट sir. पॉइंट मैंने क्या बोला था, मैं वही भूल गया। Elements which are in same yes, group. elements which are placed in same group are having similar physical and chemical properties.
नेक्स्ट एंड स्टार मार्क लगा करके लिखेंगे पॉइंट को। ये पॉइंट तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखो ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, all elements are arranged, all elements are arranged with respect to with respect to with respect to oxygen and hydrogen, with respect to oxygen and hydrogen। ठीक है ना? तो दिस इज द स्टार मार्क ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वन लिखो atomic mass of boron was corrected with the help of atomic mass of boron was corrected, atomic mass of boron was corrected with the help of equivalent weight, with the help of equivalent weight or mass, with the help of equivalent weight or mass। नेक्स्ट लिखो, लिखो few elements were not discovered, few elements which were not discovered, few elements which were not discovered, which were not discovered, but their position, but not discovered, but their position, but their position was already defined, their position was already defined, position was already defined with respect to, with respect to just above element। Sir, please repeat again. A few elements were not discovered, but their position was defined with respect to above element। Okay. ठीक है ना? Which are called as Ika, aluminium, Ika, silicon, ठीक। बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? ड्रॉबैक लिखो जल्दी से, राइट डाउन ड्रॉबैक फास्ट, राइट डाउन ड्रॉबैक फास्ट। फर्स्ट, position of hydrogen was not clearly defined, next, position of isotopes in the periodic table is not defined, position of a periodic table, sorry, position of isotopes in periodic table was not clearly defined,
नेक्स्ट वन लिखो, लिखो few elements, few elements, few elements were having higher atomic mass. Few elements were having higher atomic mass. Few elements were having higher atomic mass, but they were placed before. But they were placed before. Bisley? Unlock? They were placed before. एग्जाम्पल में लिख लो, मेरे पास दो है, देखो, कोबाल्ट निकिल, टेल्यूरियम एंड आयोडीन. फास्ट. म्यूट करो, म्यूट कर लो बेटा, अदरवाइज मैं म्यूट कर दूंगा तो फिर किसी की कोई आवाज नहीं आएगी. हो गया? कोबाल्ट निकिल आयोडीन एंड टेल्यूरियम. मैं सबको म्यूट मैं ही कर देता हूं तब. ये लो. हो गया? चलो भाई, हम लोग आते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल को छोड़ करके थोड़ा सा और आगे आते हैं. ओके, उस टाइम पे इतने ही एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, बट दैट वाज द मोस्ट, बोल दूं, एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल until modern periodic table was discovered. ठीक है ना? तो हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. इसके पहले all the periodic properties till now, all the periodic properties are function of their atomic mass. बट अभी मैं बोल रहा हूं इसमें slightly different. All the periodic properties are periodic function of their atomic mass. तो ये कहां से पता चला मुझे? ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को ले लेकर के मैंने यहाँ हाई बीम रेज पास करना स्टार्ट किया, और यहां से जो भी इसका रेज इधर से निकल निकल करके आ रहे थे, उन सभी का फ्रीक्वेंसी मैंने मेजर किया. फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू. हम लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, सोचो, जो अभी एटॉमिक वर्ड आ रहा है ना, इस पर पूरा एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का क्यूब, ऐसा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन न्यू का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, न्यू क्यूब. बहुत सारे ग्राफ्स हमने प्लॉट करके देखे. ओके, बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या किया मैंने, अंडर रूट न्यू का ग्राफ एंड एटॉमिक नंबर का ग्राफ. ठीक,
when graph is plotted between under root nu and increasing order of their atomic number. Atomic number is represented by Z. तो मैंने ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया, ठीक, एंड वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी यू आर ऑब्टेनिंग which are coming out of the sample of each and every elements. मैंने अरेंज करना स्टार्ट किया विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो पता चला कि मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स यानी एलिमेंट बोल दूं कुछ ऐसा आया ग्राफ। तो एक होता है बेस्ट फिट लाइन, एक होता है लिस्ट फिट लाइन। ये तुम लोग इंजीनियरिंग करने के लिए जाओगे तो वहां पे मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द लाइंस आर कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। उससे उन्होंने एक इन्फरेंस निकाला कि मोस्ट ऑफ द properties are periodic function of their atomic number. Most of the properties are periodic function of their atomic number. अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है? एक ब्रीफ उनको कहां से आइडिया लगा? तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी का लिया, obtained frequency which are refracted you can say, which are coming out of the sample. कमिंग आउट ऑफ द सैंपल के बाद उसका फ्रीक्वेंसी का देयर आर सो मेनी स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना, 1/, ऐसा ले ले करके हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। बट एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तुमको मिल रहा है अंडर रूट फ्रीक्वेंसी का, सभी के साथ नहीं मिला। अगर सभी के साथ नहीं मिला तो ही कम टू द कंक्लूजन दैट all the properties are periodic function of their atomic number. पहले यहां तक बोलो, is there any problem till now please? Is there any problem till now? Yes or no, fast message, text me fast. Pranali no, Akanksha no, प्रणव, स्नेहल, गौतमी, अदिति नो प्रॉब्लम। सभी लोगों ने लिखा नो प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इसी पे पढ़ना है और इस पर तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई, सीईटी सभी जगह प्रॉब्लम्स आएंगे, ओके। सो स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो व्हेन हाई बीम फ्रीक्वेंसी is passing over samples of modern periodic table. Sorry, this is modern periodic table. Someone is saying what must be the heading? The heading is modern periodic table का मैं बेस बता रहा हूँ कि कहां से आया होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, when high beam of frequency यानी energy is passing through samples of all elements, then frequency obtained from the samples are analyzed when high beam energy is passing through different samples of the elements, then frequency obtained from different samples are analyzed
then frequency obtained from different samples are analyzed and a graph is plotted between अरे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, क्या है ये, मैं किसी बुक से देख करके नहीं बोल रहा हूँ ना, मुझे अपने से बना बना के करते हैं, तो सेंटेंस में भी डिफर बट थीम विल बी सेम। क्या बोला, व्हेन हाई बीम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी is passing through different samples of elements then frequency obtained from the samples are analyzed and a graph is plotted between square root of frequency and atomic number which is coming as a straight line ठीक। तो ये ग्राफ प्लॉट करो, ये वाला ग्राफ प्लॉट करो प्लीज। तो ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन अंडर रूट न्यू एंड एटॉमिक नंबर। ओके, लिवन गेटला का यस मैं भी धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। ओके हो गया। चलो, so write down the statement below to that. Okay, write down a statement please. Write down a statement please, an important one. This is very very important statement. Like all periodic properties are periodic function of their atomic number. Which is represented by Z. तो भाई इंटरनेट का इश्यूज बहुत रहता है, क्योंकि बीच बीच में मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्राई करते हैं बहुत नेट के इश्यूज की वजह से। तो इसलिए सब लोग
जिसका भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो YouTube वीडियो वो जरूर देख लिया करेगा, ओके। अगर इफ ही और सी इज फेसिंग प्रॉब्लम, अदरवाइज नो डाउट, ठीक है ना। लोग खूब ट्राई करते हैं ज्वाइन होने का, फिर से नहीं हो पाता है, बहुत सारा ऐसा होता है। हाँ यस, देयर वाज पावर कट, बहुत जगह पे पावर कट था, मेरे यहाँ पर भी पावर कट था बिफोर लेक्चर। मुझे डर लग रहा था लेक्चर होगा भी नहीं होगा। चलो ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? प्लीज, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो लेट अस प्रोसीड। तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ श्रावणी बोले रिपीट करने के लिए, रिपीट करने के लिए था कि ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर, all the periodic properties are periodic function of their atomic number which is represented by capital Z। Z से रिप्रेजेंट किया था ना, ये देखो कैपिटल Z से मैंने रिप्रेजेंट किया था, ऐसा कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया था, ठीक। ओके, तुम लोग डिसाइड करो मुझे लेक्चर को प्रोसीड आगे कराना है या यहाँ पे मैं छोड़ूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, कितने 4-5 लोगों का हो चुका है। यस किसके लिए? यस किसके लिए? निजिता बोले भूख बहुत लगा है, बात सही है भाई, 12-1 बजे के बाद खाना समय हमको समझ नहीं आता और दिमाग में सिर्फ खाना ही खाना चलता है, हमारे भी सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रोसीड करना है भाई, तो भूख लगती है तो और ज्यादा समझ में आता है। चलो भाई सब लोग बोल रहे हैं लेट अस प्रोसीड, ओके। अगर मुझे प्रोसीड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली वी कैन मूव अहेड, डेफिनेटली वी कैन मूव अहेड, ओके। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वट एवर इज द फाइन, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ब्रीफ एक मैं आइडिया दे देता हूं पीरियोडिक टेबल का, ओके। तो अपना पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, अपना पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, ओके। सो दिस वन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे पूरा का पूरा एस ब्लॉक। अभी मैं बताऊंगा कि वाई दिस वन इज एस ब्लॉक, ओके। दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक elements, this is called as D block elements, है ना। ये ब्लॉक्स कैसे आए होंगे ये मैं पूरा तुम लोग को बताता हूँ। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर नेमिंग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। कैसे मैं इसको डी ब्लॉक बोल सकता था? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। So this is based on electronic configuration, S, P, D, F ऑर्बिटल, वेरी गुड। श्रीकांत ने बोला है SPDF ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास ऐसे ऐसे करके 2 ग्रुप होते थे, दैट इज 1 2 देन 3 4 5 6 अप टू 12, ऐसा, ओके। देन स्टार्टिंग विथ 13th और लास्ट में जाकर के मेरे पास होता था 18th, okay। So you are having 18th, you are having 18 period, sorry 18 groups, okay। SPDF ऑर्बिटल्स के नाम पर हम लोग करते हैं, मैं पूरा बताऊंगा तुम लोग को, पूरा एक एक चीज डिटेल में। मैं कोई टॉपिक ले लूंगा
थ्योरेटिकल पोर्शन छोड़ दो। हाँ, अभी तक का। अभी जो मैं करूंगा डेफिनेटली फिर से मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हें कि तुमको जितना इंफॉर्मेशन होगा किसी को नहीं होगा, डोंट वरी। ये सब क्या है? दिस इज फर्स्ट या 1 2, कितने हैं ऐसे ऐसे टोटल? 7। सो दे आर स्टिल कॉल्ड एज ग्रुप, सॉरी उल्टा ही बोल दिया, दे आर स्टिल कॉल्ड एज periods, and vertical columns are called as, क्या बोला करता हूं मैं? groups. Groups and periods. The total number of groups are, हाँ दर्शन, मैंने बोला कि उन्होंने पीरियोडिक बोला है कि नोबल गैस के लिए क्या क्या, नोबल गैस के लिए उन्होंने एक जीरो ग्रुप बनाया अलग से। ओके, मेंडली पीरियोडिक टेबल में एक जीरो ग्रुप अलग से बना करके उन्होंने रखा क्या? दैट इज कॉल्ड इज नथिंग बट नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो यहां पर 18 ग्रुप में देयर विल बी क्या? इनर्ट गैसेस, देयर विल बी इनर्ट गैसेस। ओके, दिस इज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, हाँ मैंने बहुत सारे चीजें जल्दी जल्दी में किए, बोल करके किए, क्योंकि हम लोग का मेंडली पीरियोडिक टेबल तक हम लोग के कोर्स में नहीं है, उसको निकाल दिया अभी लास्ट ईयर से। ठीक है ना, हम लोग के कोर्स में डायरेक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। यूं समझ लो हम लोगों ने एक दो लेक्चर जो भी किया वो इंफॉर्मेशन के लिए किया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चला गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैं ईच एंड एवरी पॉइंट पूरा डिटेल में लिखूंगा, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इवन। ओके, तो all the vertical columns are called as groups and they are 18. All the horizontal rows are called as periods and they are 7. ठीक है ना? Now according to electronic configuration, according to electronic configuration, they are placed in S block, P block, D block and एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं क्या? F block. One more is called as F block. मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, प्लीज। यहां पर है, तो दिस इज द सब पार्ट ऑफ, इसके लिए अलग से नहीं है, उन्होंने यहीं से निकाला। ओके, और यहीं से कैसे निकाल करके लेकर के आया वो, ये देखो। तो सेपरेटली एफ ब्लॉक इज प्लेस्ड बट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं तुमको आगे बताऊंगा कि इसका मतलब है आगे चल करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी अपना रॉन्ग हो सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपना बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा जैसे ही एलिमेंट्स डिस्कवर्ड मोर हो जाएंगे ना। जैसे ही डिस्कवर्ड हम लोग के बहुत ज्यादा होंगे, सपोज वन एलिमेंट, चलो तू क्या कर, तू डिस्कवर्ड कर, और डिस्कवर करके एटॉमिक नंबर सपोज 140 आ गया, सपोज एटॉमिक नंबर 140 आ गया, डेफिनेटली ये पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस पीरियोडिक टेबल विल डिस्टर्ब, क्यों? बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन SPDF ऑर्बिटल्स। तो F ऑर्बिटल के बाद जो ऑर्बिटल्स अभी तक डिफाइन ही नहीं किया है हमने, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। F ब्लॉक के बाद और जो ब्लॉक्स आएंगे वो कहां रखेगा तू? समझ रहा है? तो बट राइट नाउ इट इज करेक्ट वन, राइट नाउ इट इज करेक्ट वन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, whole periodic table is defined with respect to, now word is I'm saying with respect to carbon, with respect to carbon, all the atomic number, all the atomic masses are defined with respect to carbon. जब atomic mass ही with respect to carbon है, तो अगर इन फ्यूचर पता चला विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन या विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन
पूरा एलिमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया तो पूरा का पूरा विल बी चेंज्ड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गोइंग टू चेंज आफ्टर। हो सकता है हम लोग जब बुढ़े हो जाए, दांत टूट जाए, तो पता चलेगा कि कोई नया पीरियोडिक टेबल देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज हैविंग 18 ग्रुप, 7 periods, and each and every elements are arranged in increasing order of their atomic number. And during electronic configuration of atomic number, elements are, once electrons are coming in s block, s orbital, p orbital, d orbital, f orbital. According to that, they are placed in s block, p block, d block and f block elements. अब यहां तक पहले बोलो सभी लोग, कोई डाउट है क्या? प्लीज प्लीज लेट मी नो, कोई डाउट है क्या? यस और नो? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। सब लोग लिखो, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, यानी हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अब, जो कि मैं कर लूंगा। ओके, हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अब, जो कि स्टार्ट होगा कल से। बोलो कोई डाउट है तो हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। ठीक, हाँ, किसी को कोई डाउट है तो रुक सकता है, पूछ सकता है। और ये सब चीजें तो डेफिनेटली आगे क्लियर हो जाएंगी और भी। ओके, चलो लेट अस स्टॉप द मीटिंग। इज देयर एनीवन? यस, थैंक यू इज राइटिंग। बाय बाय, बाय बाय।